Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. I am doing rotational dynamics with you. पहले मैंने rotational dynamics को explain किया from the basic points. फिर मैंने PYQs किए नीट के, फिर मैंने PYQs किए JEE के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. अब जाकर मैं एडवांस्ड IIT स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ क्वेश्चंस ऑन द सेम रोटेशनल डायनेमिक्स, सो दैट आई फील इट इज कंप्लीट. द होल स्पेक्ट्रम ऑफ डिफिकल्टी इज कंप्लीटेड बाय मी फ्रॉम द बेस लेवल फॉर द नीट स्टूडेंट्स, देन फॉर JEE students, then for advanced level students. Now we are solving questions of advanced level. So this is the 31st question it is, and I have deliberately given more lectures on rotational dynamics, but you can watch the lectures in less time. Even in a single day you can watch 7 lectures, and lectures are of half an hour duration. You can watch lectures, all these 30 lectures or 35 lectures on rotational dynamics in a few days. But I have tried to give it full justice from basic level to the advanced level. And if you want to learn this rotational dynamics full, you have to watch all the lectures systematically, one by one. Only then you will be benefited in some way. Question: a uniform thin rod AB of mass 1 kg is moving with a translational acceleration of a is equal to 2 meters per second square. The motion is produced by two anti-parallel forces, F1 and F2. The separation between the points of application of these forces is A equal to 20 centimeters. It is also given that F2 is equal to 5 newtons. Find the total length of the rod. This is a question. You can read the question for yourself. Okay, I will make the diagram so that you can understand the question. It's a rod. It's a rod. It is a rod here, and there are two forces. One is here, figure is not given. Another force is this. It is center of mass. इस center of mass का acceleration दिया है 2 meter per second square, and the distance between the two forces of application, जो ये force का application है और जो ये force का application है, इनके दरमियान जो distance है 20 centimeter का distance है. And the rod has pure translation. Rod का pure translation है, इसका rotation नहीं है. The rod does not have rotation. See here, a uniform thin rod AB of mass m is equal to 1 kg is moving with a translational acceleration a is equal to 2 meter per second square. इसके center of mass का ये acceleration है. The motion is produced by two anti-parallel forces F1 and F2. The separation between the 2 points of application of these two forces is 20 centimeters. It is also given that F2 दिया है 5 Newton. Find the total length of the rod. हमें rod का length find करना है. रॉड का लेंथ हमें फाइंड करना है. यह क्वेश्चन है. जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन एंड जस्ट लुक एट द फिगर. You will have better understanding of the question. But the question is, the point is, the rod has only translational motion. It does not have rotation motion. Immediately what should come to your mind? If the rod does not have rotation, that means the torque about the center of mass is 0. The torque by these two forces about the center of mass is 0. F1 नहीं दिया है, F2 दिया है, और हमें लेंथ ऑफ द रॉड निकालना है. रॉड का लेंथ क्या है तो देख लो आप अच्छी तरह से. समझो, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज x. पहली बात यह है कि इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो याद रखो, पहला लेक्चर जब मैंने दिया था, मैंने आपको बताया कि नेट फोर्स, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, it is the center of mass which will get acceleration according to the net force.
So acceleration of the center of mass is the net force on the body divided by its mass. तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था. ये एक्चुअली जो आप फोर्स से अप्लाई करते हैं इससे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है. बाकी पॉइंट्स का भी एक्सेलरेशन होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंडीशंस. वो मैंने आपको बताया. आपको मेरे लेक्चर सारे अटेंड करने पड़ेंगे तब जाकर सब सीखोगे आप. इस वक्त मैं ये नहीं बता सकता हूँ देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस फोर्स से होगा तो आप कहेंगे सर व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी अदर पॉइंट. वो मैंने बताया हुआ है, दिया है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है उन्हीं लेक्चर्स में. तो पहली बात ये है कि F2 minus F1, this force minus this force is equal to mass into acceleration of center of mass. So F2 is 5 minus F1 that we have to find is equal to m is 1 kg, AC is 2. So that will give 5 minus 2 कर दो is equal to F1. तो F1 is equal to 3 न्यूटन. पहली बात तो यही है. तो ये तो हो गया 3 न्यूटन. अब दूसरा पॉइंट ये है द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू फोर्सेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0. टॉर्क प्रोड्यूस्ड. सो व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट दिस बाय दीज टू फोर्सेस. This force will create torque, this one anti-clockwise, and this force will produce torque clockwise. तो ये anti-clockwise force, anti-clockwise torque should be equal to clockwise torque so that the net torque about this point is 0. तो क्या लिखूंगा मैं? F1 into from here to here, what is the distance from this point to this point? That is 20 plus x. So it is torque by this force is equal to, it should be torque by this force, that is 5 into this x. So F1 is 3 into 20 plus x is equal to 5x. It is 60 plus 3x is equal to 5x. तो 3 को यहाँ शिफ्ट करो, so 60 is equal to 2x. तो x is equal to 30. यह 30 सेंटीमीटर हो गया. तो अब बताइए लेंथ ऑफ द रॉड कितना है. लेंथ ऑफ द रॉड है एक तो ये 30 प्लस 20 यहां से सेंटर तक 20 वाला ये वाला प्लस ये 30 हो गया यहां से ए से सी तक. लेकिन ये तो ए बी रॉड का लेंथ पूछ रहा है तो 2 टाइम्स इट इज 50 into 2. That is 100 centimeters. That is equal to 1 meter. Answer हो गया. 2 forces are acting on the rod, but there is no rotational motion. There is only translational motion, and translational acceleration of the center of mass is 2 meter per second square. तो पहले ये F1 निकालना पड़ेगा और फिर आगे जा करके ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं. हो गया. डन. Second question. A force AI and BJ acts on a point whose position vector relative to the origin O is AI plus BJ. एक force है, this is a point origin और ये radius vector और है किसके बराबर? AI plus BJ. और इस पर फोर्स दिया है, इस पॉइंट पर फोर्स दिया है, इस पॉइंट पर और विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन. और वो फोर्स है F इज इक्वल टू AI प्लस BJ. ठीक. Where A, B and these are constants. I and J are unit vectors along x and y axes. Determine the moment n of the force and the lever arm of this force. Moment n का मतलब क्या है? Moment n of force, इसका मतलब मुझे बताइए. और मुझे बताइए आर्म L of the force. आर्म L of the force. इन दो का मतलब मुझे बताइए पहले, फिर हम काम करेंगे. Moment n of the force बताइए क्या होता है और आर्म L of the force बताइए क्या होता है. पहले इसका मतलब ही चाहिए हमें. What do you mean by moment n of the force? Moment n of the force, some books write it like that. Moment n of the force. Moment of the force, they write.
दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ सम बुक्स. जनरली जो रशियन बुक्स है दे राइट लाइक दिस, मोमेंट ऑफ द फोर्स. Generally, British books or American authors, they write torque. They mention torque. What is torque? By this force. But Russian authors or Russian books, they say moment of the force. Moment of the force is nothing but torque. And what is RML of the force? RML of the force is R sin theta. वो क्या मतलब हुआ, जब आप फोर्स को पीछे की ओर ऐसे 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 करोगे तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे, ये वाला परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया, तो आर के दो कंपोनेंट्स, आर कॉस थीटा यहां से यहां तक, एंड ये हुआ आर साइन थीटा. ये आर साइन थीटा कहलाता है आर्म ऑफ द फोर्स. ये इस फोर्स का आर्म कहलाता है. ये रशियन लैंग्वेज है. Arm of the force, R sin theta. RML of the force means R sin theta. मतलब shortest distance between the force axis and the origin, about which you have to find torque. जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपको फाइंड करना है, उस पॉइंट से लेकर के फोर्स एक्सिस पर आपको परपेंडिकुलर डालना है. वो जो परपेंडिकुलर का लेंथ है उसी को कहते हैं R sin theta, और उसी चीज को कहते हैं आर्म ऑफ द फोर्स. वो इट्स ए रशियन लैंग्वेज. मगर यहां पर आपको समझ आया. अब टॉर्क निकालना है, हमें आर साइन थीटा निकालना है. ये मैं आपको निकाल कर देता हूं. चलिए ठीक है, ओके, चलो हम निकाल कर देते हैं. अब अभी पहली बात यह है कि व्हाट इज टॉर्क, दैट इज आर क्रॉस एफ. व्हाट इज आर, दैट इज ओके, ये तो आई जे और के. और व्हाट इज आर, आर इज ए के, आर के कंपोनेंट्स, आर के ए बी जीरो. तो बताइए एफ के कंपोनेंट्स, ए बी जीरो. इट इज आई टाइम्स ये वाला, ये वाला डिटरमिनेंट बी बी जीरो जीरो प्लस जे, ये वाला डिटरमिनेंट जे के बगैर, जे लाइन के बगैर जो डिटरमिनेंट बनेगा, लेकिन पहले ये जीरो जीरो लिखना पड़ेगा, फिर ए ये याद रखना पड़ेगा, प्लस के टाइम्स के का लाइन खत्म, और के उसके बगैर जो है वो डिटरमिनेंट बनेगा ए बी बी, ऐसे कुछ. इट इज, ये भी जीरो होगा, बी इंटू जीरो माइनस बी इंटू जीरो, जीरो इंटू ए इंटू जीरो इंटू ए. तो के टाइम्स ए बी माइनस बी ए. मिला हमें टॉर्क. आंसर हमें मिला टॉर्क का, दैट इज ए बी माइनस स्मॉल बी ए इंटू के. ये हमें टॉर्क मिल गया. इन रशियन लैंग्वेज और इन सम बुक्स लैंग्वेज, इट इज मोमेंट ऑफ द फोर्स. इट इज मोमेंट ऑफ द फोर्स. वो भी टॉर्क ही है. ठीक, अच्छा. नाउ व्हाट इज आर साइन थीटा, फोर्स आर्म, मतलब आर्म ऑफ द फोर्स एल. उसको कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड दैट आर्म ऑफ द फोर्स. आर्म ऑफ द फोर्स हम कुछ इस तरह से निकालेंगे. देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ, दैट इज आर एफ साइन थीटा, ऐसे कुछ. तो बताइए आर साइन थीटा किसके बराबर लिखूंगा मैं, दैट इज एल जो निकालना है, दैट इज आर क्रॉस एफ, दिस वन, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एफ. व्हाट इज आर क्रॉस एफ, व्हाट इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड इज टॉर्क, दैट इज ए बी माइनस बी ए, that is AB minus BA, that is the torque. R cross F magnitude, AB minus BA, AB minus BA हो गया. ये डिवाइड बाय F का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड, इस F का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज दैट, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, that is A square plus B. Finish, answer.
हमने फोर्स आर्म भी निकाला, हमने टॉर्क भी निकाला, दोनों चीज़ें। लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये देखो, अगर ये पॉइंट O है, ये R है, ये फोर्स F है, ठीक। फोर्स को पीछे ले जाइए आप, फोर्स एक्सिस को, इसको कहते हैं फोर्स R। और यही होता है, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा हुआ, R के दो पीसेस, ये R cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक R cos थीटा, जो हमें ज़रूरत नहीं है, ये R sin थीटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फोर्स एक्सिस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है फोर्स आर्म, ठीक। R sin थीटा हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ये अच्छे क्वेश्चंस है, हैवी क्वेश्चंस है। अब मैं इनको सिंपलीफाई करके आपको दिखाता हूं। शायद आपको लगता है इजी है, लेकिन ये मैं इजी बनाता हूं, आई मेक देम इजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। A force F1 force is equal to AJ. It acts at a point R1 equal to AI. यह फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट करता है, ठीक। मतलब रेडियस वेक्टर ये है, तो इस पॉइंट पर यह फोर्स एक्ट करता है। चलो मैं फिर से डायग्राम में बनाता हूं। F2 फोर्स that acts, BI force that acts at R2 equal to BJ, where A, B are constants. Find the lever arm of the resultant force. Find the lever arm of the L of the resultant force. ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से आपको R sin थीटा ही निकालना है। आपको लिवर आर्म ऑफ द फोर्स मीन्स यही R sin थीटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट and the net force axis, not this force axis, net force axis. तो पहले मैं क्या काम करूं, हैव ए लुक। पहले मैं एक काम करता हूं, जरा मुझे बताइए व्हाट इज नेट फोर्स। पहले टॉर्क निकालिए, टॉर्क R1 क्रॉस F1, this is torque due to this force about which acts on this point, plus R2 क्रॉस F2। मैंने समझो कि बेस इक्वेशन जो टॉर्क का मैंने लिखा, इट्स द बेस इक्वेशन ऑफ द टॉर्क, तो हो गया समझो। तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट इज R1, दैट इज AI क्रॉस AJ, प्लस व्हाट इज R2, BJ क्रॉस BI। ठीक है फिलहाल, हाँ ठीक चल रहा है। मैं सबस्टिट्यूट कर रहा हूं, आई एम जस्ट सबस्टिट्यूटिंग द थिंग्स। अच्छा, नाउ टॉर्क इक्वल टू दैट इज AA I क्रॉस JK प्लस BB J क्रॉस I माइनस K, वेक्टर्स I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K, उल्टा उसका। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू K टाइम्स AA माइनस BB। K मैंने कॉमन निकाला और ये नेगेटिव यहां अपीयर हुआ, तो टॉर्क मुझे मिला। आई गॉट द टॉर्क, मैग्नीट्यूड AA माइनस स्मॉल b कैपिटल B इन द डायरेक्शन ऑफ द Z डायरेक्शन, Z डायरेक्शन में टॉर्क मुझे मिला। अच्छा, तो अब रिजल्टेंट फोर्स, कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स? यस, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज F1 प्लस F2। What is F1? That is AJ प्लस BI। ऐसे देखो, AJ BI सम किया, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। इसका फोर्स आर्म मुझे निकालना है। I have to find the force
force arm of the resultant force. I had to find force arm of the resultant force. ठीक, इसलिए मैंने रिजल्टेंट फोर्स निकाला. अच्छा, तो अब कैसे निकालेंगे फोर्स आर्म? देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. ठीक, अब मुझे चाहिए आर साइन थीटा. सो आर साइन थीटा उसी चीज को कहते हैं फोर्स आर्म, दैट इज एल, फोर्स आर्म ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, दिस वन. ठीक, एंड इज इक्वल टू टॉर्क मैग्नीट्यूड बाय फोर्स. मगर विच फोर्स? नॉट द आइदर फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स, दिस वन. तो बताइए टॉर्क किसके बराबर है? अभी निकाला टोटल टॉर्क बाय बोथ द फोर्सेस. ए माइनस बी बी. ए माइनस बी बी. ए माइनस बी बी. स्मॉल बी कैपिटल बी डिवाइडेड बाय व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. देखिए, दैट इज रूट ऑफ, yes, a square plus b square. Finish. Answer. This is the answer. So these three problems are heavy problems and are for advanced level students who want to go for the advanced level engineering, right? So continue to watch my lectures every day. I'll be uploading these questions, heavy questions for rotational dynamics. It will take me a few more lectures. And finally, we will start gravitation. And after that, we will start gravitation. Thank you.